तो ऑलरेडी हमने कन्वर्जेंस वाला सारा पोर्शन का कवर कर दिया है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मीन डीएफए का मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर फैकल्टी कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। आई एम नॉट श्योर दैट वेदर एनी अदर मेथड इज ऑल्सो देयर और नॉट, बट मैंने ये दो मेथड पढ़ा and my teacher taught only minor road, but equivalency partitioning is also an easy method. So I am covering both of these method. Okay, equivalency method or partitioning method we will do in this video, and another video we will do in minor road. Okay, both of what do you mean by first of all that minimization? Means some states are given to you DFA. Okay, I already told in I think in first video that you have created an NFA, right? जिसमें तुमने NFA बनाया था. I already told you that we have to create only accepted state, not the rejected state. But if you create the rejected state, okay, somehow, if you created the rejected state, but you know that you need not to make the rejected state. But अगर तुमको कोई भी verify करना है, तो you have made that accepted state only. Okay, but तुमको ऐसा दे रखा है, NFA तुमको finite state automata बना के दे रखा है, in which that rejected state is also given. ओके, तो तुम इसको डीएफए में कन्वर्ट करोगे, देन मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. आई डोंट नो इफ दे वांट टू मेक इट, दे कैन मेक इट एज वेल. तो उसमें क्या होता है कि हमको मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए मतलब एक ये बहुत बड़ा दे रखा है, ये बहुत बड़ी चीज दे रखी है. ओके, इसमें से कुछ स्टेट्स होंगी जो दैट इज यूजलेस. मीन्स इसको और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को और छोटा बनाया जा सकता है. मीन्स किसी भाई बहुत बच्चे होते हैं, उन्होंने मान ले कोई some student made this DFA which is correct. Some made using four states which can be correct. I'm not saying that four states is all definitely will be correct. No. If the language that is accepted by this and for accepted by that made by using four states is also accepted, that means this DFA is more optimized as compared to this one. ऐसे थ्री स्टेट भी हो सकता है, टू स्टेट भी हो सकता है, डिफरेंट. So first we are going with equivalency method. Very easy method. Just see step by step and I will tell you the note. Clearly I will mention that important. So you write in your notebook as in your language only. Okay. First, zero equivalency. Zero equivalency. Important means write in your own language. Whenever I will say important, write in your own language. First of all, what we have to do, we have to write all the states in one curly bracket except the final state. Okay, means A, B, C, D, and E. Final state separately. Okay, this and this. Okay, now we have to go till that position where both the current, both the current and the previous equivalency curly bracket will be same. That means no further minimization can take place. Okay, now we are going for the one equivalency. First we are comparing this to AB. Now important, we have to see AB. It's going to BB. BB, this particular thing either can say, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ये दो स्टेट को अभी हम कंपेयर कर रहे हैं. ये दो स्टेट, सी अगेन आई एम सेइंग ये दो स्टेट, इन दो स्टेट में जीरो पे या तो सेम हो या तो सेम करली ब्रैकेट्स के अंदर हो. मीन एक ही सेट में हो, डिफरेंट सेट में ना हो, तो हम इनको पेयर करेंगे. मीन यहाँ पर हम देख सकते हैं बीबी. ओके, बीबी क्या है, सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है ना. हाँ है. अब इसका सीडी देखो, सीडी मतलब ये तो सेम था,
तो सेम है तो रहने देंगे ऐसी। बट सी डी क्या, सी डी सेम स्टेट में है, मतलब ए और बी साथ तो होंगे। नाउ वी हैव टू सी ए एंड सी, ए और सी, ये दो सिंबल तो साथ सेम है, मीन नो नीड टू वरी अबाउट दिस। साथ है मतलब सेम है, तो हमको और कुछ चेक नहीं करना। बट सेम है तो कुछ चेक नहीं करना, मतलब भाई सी भी इधर ही आएगा। नाउ सी डी, अब ए और डी को कंपेयर कर रहे हैं, डी तो सेम है ही, सी और ई, भाई ये अलग है। अलग है तो हमको क्या चेक करना है कि अलग है तो सेम सेट में हो। सी वाला तो इस सेट में है, ई वाला इस सेट में है, मतलब सी डी इज डिफरेंट, मीन डी इज डिफरेंट। समझ गए? सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, हमारे लिए अच्छी बात है। बट अगर सेम नहीं है, जैसे ये, तो ये दोनों सेम सेट के अंदर होने चाहिए, प्रीवियस वाले सेम सेट के अंदर। इसका प्रीवियस क्या है, जीरो, तो जीरो वाले के डिफरेंट सेट में। तो हमको आगे बढ़ना। अब हम क्रिएट करेंगे सेकंड इक्विवेलेंसी। सेकंड इक्विवेलेंसी सेकंड इक्विवेलेंसी, now see AB, 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 this is same, BB, no need to worry। CD, भाई C तो इस सेट में है, मैंने क्या बोला, प्रीवियस सेट चेक करना। C तो इस सेट में है, D डिफरेंट सेट में है, तो B को भी हमको अलग करना पड़ेगा। B को भी अलग करना पड़ेगा। अलग कर दिया। इसको अभी मैंने क्लोज नहीं किया, ये देखो क्लोज नहीं किया, क्यों? क्या पता C B के साथ बैठा हो, A के साथ ना हो, है ना? अब चेक करेंगे। अब एक A और C को चेक करो। A और C में क्या हो रहा है, ये तो सेम है, B भी, सी भी सेम है, तो ये तो इसी के साथ होगा। अब तुम्हारी तसल्ली के लिए हम बी और सी भी चेक कर लेते हैं। बी और सी में डी भी तो सेम है ही, सी और डी देखो, सी तो इस सेट में है, डी इस सेट में अलग है, मतलब सी बी के साथ तो बैठेगा नहीं, इसको भी क्लोज कर दो। अब हम चलेंगे थर्ड इक्विवेलेंसी। अब ए और सी को चेक करो। ए और सी दोनों सिंबल सेम है, कुछ नहीं करना, दोनों सिंबल सेम है, कुछ नहीं करना, तो ए और सी ऐसे एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब यू कैन सी, यू कैन सी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो कुछ नहीं था। ठीक है, मीन अब हमको ऐसी ट्रांजिशन टेबल बनानी है, ऐसी टीटी बनानी है। वैसे तो बोले तो कायदे से बोले तो ए और सी तो सेम है, टीटी बनाओ या ना बनाओ तुम्हारे ऊपर, जैसे मैं नहीं बना रहा। ए और सी, है ना, ए और सी साथ है ना, तो मैंने ए और सी को एक स्टेट मान के, एक ही स्टेट मान लिया। एक ही स्टेट मान लिया, क्या माना? अब ए और सी को मैंने एक स्टेट मान लिया। लेकिन मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर ही देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, एक ही स्टेट मान लिया मैंने उसको। अब ए और सी जीरो आने पर बी पे जा रहे हैं, पहले सारी स्टेट बना लो जिससे कि दिक्कत ना हो। ए सी
डी ई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये इस पे जाने पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ए सी जीरो पे यहाँ गया। अब ये देखो, ये वाली नोटेशन पॉइंट, वन आने पे कहाँ जा रहा है, ए और सी दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। बट सी तो कुछ नहीं, बट सी इसमें तो है ना, तो इस पे घुमा दो, वन, राइट। अब बी का देखो, बी जीरो पे खुद पे है, वन आने पे डी पे गया, वन आने पे डी पे गया। अब डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। डी जीरो आने पे, जीरो आने पे वन पे गया, बी पे गया, और ये आने पे, वन आने पे कहाँ गया, ई पे गया। अब ये देखो ई जो है ना, वो फाइनल स्टेट है, तो बनाओ भैया इसको फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट बना दिया। अब क्या बात आई, ई की बात है। ना वी हैव टू सी दिस थिंग, जीरो आने पे कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, जीरो आने पे, जीरो आने पे बी पे, बरोबर। और वन आने पे सी पर, सही है ना। एकदम सही है। तब ये देखो, इक्विवेलेंसी से जैसे ही हमारी दो इक्विवेलेंसी सेम आ जाए, मतलब इससे कम रिड्यूस हो नहीं सकता। मीन, मैं एक्स वाई जेड पर्सन का नाम, चलो मैं एक नाम ले लेता हूँ। मान लो अविसी ने बनाया ये वाला, विच इज ट्रू, बट पेपर में लिखा ड्रॉ द मिनिमाइज डीएफए। तो अविसी ने अपने हिसाब से ये बनाया, बट वो बाद में उसको मिनिमाइज कर लेगी तो नंबर उसको मिल जाएंगे। बट अविसी ने ये बनाया कुछ ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, और एक्स वाई जेड नाम ले रहे थे, कैथरीन ने ये बनाया। ओके, तो इसका ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही है भाई, दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, बट क्वेश्चन में लिखा मिनिमाइज डीएफए, मिनिमाइज डीएफए, तो ये है, ये नहीं है। हालांकि इसको जीरो नंबर तो नहीं मिलेंगे, फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंड करता है। इसको मान लो 5 मिले, कैथरीन का सही है, इसको 10 मिलेगा, बस बात खत्म। ये है तुम्हारा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ओके, ऐसा ये क्वेश्चन है, वो मैं तुमको यहाँ पर दे ही देता हूँ ताकि तुम कर लो। वैसे तो मेरे नोट्स अगर इन दोनों के पास हैं तो कर लेंगे ये, बाकी बाकियों के लिए भी दे ही देता हूँ। ओके, बाकियों के लिए क्या है, जीरो, ये वन, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, क्यू सिक्स, क्यू सेवन। ओके, जीरो आने पे ये गया क्यू वन, क्यू सिक्स, क्यू नॉट, क्यू टू, क्यू सेवन, क्यू टू, क्यू सिक्स, क्यू सिक्स, क्यू फाइव, क्यू टू, क्यू टू, क्यू सिक्स, क्यू फाइव, क्यू सिक्स, क्यू फोर, क्यू टू। अब बात करते हैं क्यू टू, तुम्हारा हाई है, इसका मिनिमाइज डीएफए बनाना। वापस तुमको मैं बता देता हूँ क्या करने का। ऐसे पहले लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द सेम, all the non-finite states are in the same set, finite state in the same set. Okay, multiple finite state can be there,
राइट, ऑलरेडी मैंने बता रखा तुम्हें। अब फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू कंपेयर ईच वन ऑफ दिम, लाइक ए बी को कंपेयर किया, फिर चेक करना अगर सिंबल सेम है, नो प्रॉब्लम फॉर द जीरो। हमको दोनों के लिए चेक करना है, ऐसा नहीं कि जीरो के लिए चेक किया कि भाई जीरो के लिए तो है तो फिर हम सेम सेट में लिख देते, नहीं, वो वन के लिए भी सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो एक एनएफए बन जाएगा, समझ रहे हो ना। सेम सेट में होगा तो मतलब सेम स्टेट पे भी जाएगा। सपोज इफ ए, ये बोथ आर इन द सेम सेट, मीन इसको हम कंबाइंड ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू एक पर्टिकुलर डिफरेंट, एक पर्टिकुलर यूनिक सेट पे जा सकते हैं। मान लो ये तुम्हारा सेम है बट ये तुम्हारा अलग हुआ और तुमने इसको कंबाइंड कर दिया, तो पता है क्या होगा, तो तुम्हारा ये तो सही है, तो इस चीज के लिए तो तुम एक यूनिक स्टेट पे गए, इसके लिए तुम टू डिफरेंट स्टेट पे गए, टू डिफरेंट स्टेट पे गए, तुम्हारा ये तो एनएफए बन गया ना, और वो हमें बनाना नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी क्या, सेम है, अच्छी बात है, सेम स्टेट पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डिफरेंट स्टेट है तो ये चेक करो कि डिफरेंट स्टेट है तो ये सेम सेट में लाई करता है कि नहीं। सेम सेट में लाई करता है तो उसको सेम सेट में लिखो, नहीं करता है तो इसके लिए अलग से स्टेट बना दो। नहीं, जैसे यहाँ पर अलग से स्टेट बन गया था बी का, अगर सी ए के साथ लाई नहीं करता तो बी के साथ चेक करते, बी के साथ भी लाई नहीं करता तो अलग सेट में रखते, ए के साथ चेक करते, मान लो लाई नहीं करता, मान लो इसके लिए वन अलग अलग सेट में बैठा, बी के साथ चेक करते तो मान लो इसके लिए जीरो अलग अलग सेट में बैठा, जीरो पे जहां पर मेरे जिस स्टेट में मेरे को जाना है वो अलग अलग स्टेट में, फिर मैं डी के साथ चेक करता, ठीक है। मान लो डी के साथ जहां जाना है वो अलग स्टेट में, तो फिर सी के लिए मैं एक अलग स्टेट बनाता। अगर सेम हो गई, जहां पर भी सेम है उसके लिए एक कॉमन स्टेट बनाओ और प्रोसीड कर दो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बनेगा 5 स्टेट, तुमको 7 स्टेट है, इसका आंसर आएगा 5 स्टेट्स में। मिनिमाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा माहिंदी रोड मेथड क्या। ओके, टिल देन बाय बाय।